بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ثنا کرنا، مدح سرائی کرنا، حضور کا ذکر کرنا اور حضور کی تعریف کرنا، یہ بابرکت اور عبادت اور ثواب ملتا ہے، کیونکہ حضور سرور کونین دو جہاں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ذات وہ بابرکت ذات ہے کہ جس کا ذکر خود رب ذوالجلال قرآن میں فرماتا ہے۔ یہاں سے معلوم ہوا جس کا ذکر خود رب فرمائے اس کا ذکر ہم کیوں نہ کریں اور کیوں نہ ہم رب تعالیٰ سے اس کا ثواب پائیں۔ سامعین و ناظرین، ہم میں بہت سے افراد جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آواز، سر جیسی نعمت، ترنم بہترین جیسی نعمت سے نوازا، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو بغیر سر اور ترنم کے نعت پڑھتے ہیں، مگر ایک بندہ جو کہ بغیر ترنم کے پڑھتا ہے مگر دل کے اندر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی محبت رکھ کے پڑھتا ہے، دنیا کی لالچ نہیں رکھتا، تو پھر سرور کونین دو جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے محبت بھی کرتے ہیں، اس سے راضی بھی ہوتے ہیں۔ اور ایک ایسا بندہ کہ جو حضور علیہ السلام کی ثنا تو کرتا ہے، حضور کا ذکر تو کرتا ہے، مگر وہ دل سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا، حضور علیہ السلام سے عشق نہیں کرتا، دنیا کی لالچ میں پڑ جاتا ہے، وہ پھر عذاب کا مستحق ہے نہ کہ ثواب کا۔ سامعین و ناظرین، حضور علیہ السلام کا ذکر کرنا ہر بندہ کر سکتا ہے، مگر منبر رسول پر بیٹھ کر حضور علیہ السلام کا ذکر کرنا، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ سے سوال کیا گیا کہ یا شیخ، کوئی بندہ جو داڑھی نہ رکھتا ہو، تارک صوم و صلات ہو، تو کیا آپ بتائیے اسے منبر رسول پر بٹھا کر ہم اس سے حضور علیہ السلام کا ذکر میلاد پڑھوا سکتے ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے فرمایا کہ وہ شخص خدا کے عذاب کا مستحق تو ہے، منبر رسول پر ایسے شخص کو بٹھا کر اس سے حضور کا ذکر کرانا، حضور کا میلاد پڑھوانا ناجائز اور حرام ہے، کیونکہ کہ اگر ہم فاسق کو آگے کرتے ہیں، فاسق کو منبر پر بٹھاتے ہیں جو کہ تارک صوم و صلات ہے، داڑھی بھی نہیں رکھتا، حضور کی سنت کو چہرے پر نہیں سجاتا، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ایک فاسق کو منبر پر بٹھانا، آگے کرنا، یہ اس کی تعظیم ہے، حالانکہ شرعی طور پر فاسق کی توہین کرنا واجب ہے، اور ہم اس کی تعظیم کر رہے ہوتے ہیں۔ سامعین و ناظرین، اب میں آپ کے سامنے ایک صد افسوس کا واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جو کہ آپ تمام حضرات اس سے واقف ہیں۔ ہمارے حضور علیہ السلام کی مدح کرنے والے، حضور کا ذکر کرنے والے ایک ثنا خان مصطفیٰ نام نہاد الحاج شہباز قمر فریدی صاحب، جو کہ حضور علیہ السلام کی مدح سرائی کرتے ہیں، حضور کا ذکر کرتے ہیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ ان کے چہرے پر حضور علیہ السلام کی سنت نہیں سجی ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہاں لکھا ہے کہ لاکھ روپے لے کر
हुजूर अलैहिस्सलाम की मदह सराय के लिए, हुजूर के जिक्र के लिए 1 घंटा देना, 2 घंटे देना। अब ये इस तरह हमने अवाम को लूटने का रिवाज बना रखा है, इस तरह हम अवाम को लूटते हैं। और अवामुन्नास, उनसे भी मुझे अफसोस है कि जो कि लाख रुपए देते हैं एक सना खान को सुनते हैं, जो कि शरई तौर पर उसे सुनना हराम है, उसे मिंबर पर बिठाकर हुजूर का जिक्र कराना, हुजूर का मिलाद कराना नाजायज हराम है। हालांकि हमें करना तो ये चाहिए कि फासिक जो है उसकी तौहीन करनी चाहिए, शरन तौर पर वो नहीं चलता। मगर अफसोस के साथ अलहाज शाहबाज कमर फरीदी साहब पाक पतन शरीफ के रहने वाले हुजूर अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हैं, लाख रुपए आवाम से लेते हैं, लाख रुपए लेकर हुजूर का जिक्र करते हैं। किबला, मैं आपसे मोदबाना पूछना चाहता हूं कि ये लाख रुपए लेना, ये हजारों रुपए मिनटों सेकंडों के अंदर खुद पर लुटवाना, गरीबों की जेबें खाली कराना, ये कहां लिखा है? हमने तो कभी नहीं पढ़ा। और शरन तौर पर अपने आप को कुछ ना रखना। क्या आपका शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं? क्या आप दीन इस्लाम में नहीं? तो जब आप खुद को मुसलमान कहलवाते हैं, हुजूर का जिक्र करते हैं अपनी इस जुबान पर, तो फिर उसके बावजूद आप हुजूर अलैहिस्सलाम को ये दुख तो पहुंचाते हैं ना कि हुजूर अलैहिस्सलाम की शरीयत पर आप अमल नहीं करते। तो अफसोस, सद अफसोस, जो कि एक वाकया आप तमाम अहबाब अपनी आंखों से देखते हैं कि हजरत साहब पाकिस्तान से पैसा लूटकर हर बंदे की महफिल वालों की जेबें खाली कराकर बाहर ममालिक बरतानिया अमेरिका जाकर वहां पर इस पैसे से अपना खेलो कूद करना, इस पैसे से फहाशी और उरियानी को अपने साथ अपनाना। और ये पैसा कौन सा कि हमने हुजूर अलैहिस्सलाम का जिक्र करके, हुजूर अलैहिस्सलाम की मदह सराई करके जो पैसा लिया हुआ होता है। और अवामुन्नास से मुझे अफसोस है कि जो लाख रुपए देते हैं इन सना खान को, और ये हुजूर अलैहिस्सलाम के बड़े सना खान बने हुए हैं, खुद पर मिंबर रसूल पर बैठकर, मिंबर रसूल पर खड़े होकर नाच नाच कर हुजूर अलैहिस्सलाम का जिक्र करना, ये कहां से जायज हुआ? हुजूर अलैहिस्सलाम से ये कौन सी मोहब्बत हुई? हुजूर से कौन सा इश्क हुआ? हमने तो कहीं नहीं पढ़ा। असल हुजूर अलैहिस्सलाम से इश्क करके, मोहब्बत करके हुजूर की नात पढ़ना, हुजूर का जिक्र करना, वो तो दिल में मोहब्बत होनी चाहिए। लेकिन आप हजरात जो कि इतना फहाशी और यानी को उरूज दिला रहे, फिर उसके बावजूद आपने ना कोई दूसरी अपनी वीडियो चलाई कि मेरी इज्जत पामाल हो रही है, यहां भी आपको कुछ पता भी ना चला। सोशल मीडिया पर आपकी वीडियो वायरल होती रही, मगर आप सोशल मीडिया पर ना आए, यहां तक कि ढोल धमक के चलाकर आप अपनी नाते तो पेश कर रहे हैं, हुजूर का जिक्र तो कर रहे हैं, लाख रुपए अवामुन्नास से लेकर अवामुन्नास की जेबें तो खाली करा रहे हैं, ये तो आपको याद है। मगर आपकी जो बाहर ममालिक की या जहां की भी, वो एक गंदी लड़की के साथ खड़े होकर एक फोटो खिंचवाना, फिर उसे अपना सोशल मीडिया पर शो कर देना, क्या ये हुजूर अलैहिस्सलाम की नात, हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत की निशानी है? और मिंबर पर खड़े होकर नाच करके हुजूर अलैहिस्सलाम का जिक्र करना, क्या हुजूर के ये इश्क की निशानी है? अवामुन्नास से मुझे अफसोस ये है कि ये इन नात खानों को बुलाते हैं कि जिन्होंने अहले सुन्नत व जमात का बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। इन नात खानों को बुलवाते हैं कि जो बज़ाहिर तो हुजूर अलैहिस्सलाम से ऐसी मोहब्बत के दावे करते हैं, अंदर दलीलें तो कुछ नहीं। कभी इन नात खानों ने असली मोहब्बत हुजूर अलैहिस्सलाम से की? इन जैसे नात खानों ने कभी नामूस रिसालत पर पहरा देकर इन्हें कोई सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट चलाई? कभी इन नात खानों ने नामूस रिसालत के पहरा देने वालों के साथ रोडों पर आए? कभी नहीं आए। लेकिन सोचना चाहिए और खुद में हमें देखना चाहिए कि हम कितने पैसे देकर इन नात खानों को अपने स्टेचू पर बुलाते हैं, कितनी रकम देकर हम इनसे 1 घंटे का टाइम लेते हैं, और कितने अफराद इन्हें मिनटों सेकंडों में कितने लाखों करोड़ों रुपए दे जाते हैं। और ये हुजूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने वाले हैं, ये हुजूर से इश्क करने वाले हैं, ये हमें सिखाएंगे कि हुजूर से इश्क क्या होता है, हुजूर से मोहब्बत क्या होती है। और बज़ाहिर
सोशल मीडिया पर आप तमाम अहबाब देख रहे हैं कि जो इनका नतीजा, इनके कारनामे हैं, वो तमाम ही अहबाब को मालूम है, मगर उसके बावजूद बड़ी बड़ी दरगाहों पर बुलाना, बड़े बड़े उर्स पर बुलाना, बड़ी बड़ी महफिल में बुलाना, क्या कयामत के दिन हुजूर अलैहिस्सलाम आपसे नहीं पूछेंगे? हुजूर नहीं पूछेंगे कि तुमने लाख रुपए देकर गरीबों की जेबें खाली कराकर तुमने इन नात खानों को स्टेजों पर बुलाते थे और ये मुझसे तो मोहब्बत नहीं किया करते थे, दुनिया की लालच में मरे हुए थे, और यहां तक कि चेहरे पर सुन्नत भी मौजूद नहीं, शरीयत से हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं, ऐसी नात खानी कर रहे हैं आप। तो लिहाजा अपने ऊपर सोचिए किबला, और अगर हुजूर अलैहिस्सलाम की आप नात खानी करना चाहते हैं तो चेहरे पर सुन्नत रसूल सजाइए, अपने वो जो तमाम कारनामे आपने अंजाम दिए हुए हैं उनसे माफी मांगिए, खुदा और उसके प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में सच्ची तौबा कीजिए, और फिर उसके बाद दुनिया की लालच में जो आप तमाम अहबाब इतने लाखों करोड़ों रुपए ले रहे हैं, इनसे भी बाज आइए। जब फिर आप इसके बाद हुजूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करके, हुजूर से इश्क करके, हुजूर की मदह सराई करेंगे, तो फिर जब दिल की आंख लगती है तो फिर आमना के लाल ख्वाब के अंदर भी आ जाते हैं और आकर फरमाते हैं कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं। इस तरह की हुजूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करनी चाहिए। तो लिहाजा आप तमाम अहबाब और अवामुन नास से मुझे उम्मीद है कि इन तमाम अहबाब जो कि जिन समझते हैं कि हमारा शरीर से कोई ताल्लुक नहीं, इनका आप तमाम अहबाब बाइकाट करेंगे, इनको अपने स्टेजों पर कभी ना बुलाएं जब तक ये शरीयत पर अमल ना करें, जब तक ये अपने तमाम कारनामों से बाज ना आए, तब तक हम इन्हें अपने स्टेजों पर नहीं बुलवाएंगे। इसलिए कि हमें जब पता है कि गुनाह सामने है तो फिर उस गुनाह वाले का साथ देना तो ये जुर्म से भी बाला जुर्म है। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हिदायत अता फरमाए और सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।